first of all, what we have discussed about the privilege levels. We have discussed there are four privilege level 0, privilege level 1, privilege level 2, and privilege level 3. Privilege level 0 is the most privileged level, and privilege level 3 is the weakest privilege level. Now, then we have seen if you are currently executing any code at level, let's say that 2, and if you want to access the data at another level, if you want to access a code at another level, and if you want to access a stack at another level, then how we can do this? So that I already explained. वो सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था that if we are having the data segment, if we are having the stack segment, and if we are having the code segment at a different level, then how we are going to execute it, उसको access कैसे करेंगे. So first of all, we have seen for data segment के लिए rule क्या था, that we have seen rule for the data segment. Then we have seen rule for the stake segment के लिए जो rule था वो हमने देखा था. Then we have seen the code segment. You can access the code segment only at the current level, but if you want to access the code segment, target code segment it at different level. So in example, in case of far jump or in case of far call, if we want to require to jump to the a code segment which is having a different privilege level. So there are two mechanisms. First mechanism is a conforming code segment, and the second mechanism is a gate mechanism. So that is a call gate we have seen. So conforming code segment means what? That is if your current code segment is, let's say that working at a level 1, and you want to call a target code segment which is at level 3, which is a weak one, then if you want to do so आप जो level 3 पे जो code segment आप define करोगे, उसको कैसे code segment define करोगे? We will define that code segment as a conforming code segment. So conforming code segment का advantage क्या होगा? That from whatever level you will call it, it will execute at the same level. So suppose आप level 2 पे से उसको call करोगे, तो level वो current privilege level 2 पे execute होगा, and suppose level 1 पे से उसको call करोगे, then it will execute on level 1. So that is about the conforming code segment. For which kind of application we are using this conforming code segment? For math library, for some graphics library, which can be used for multiple levels. So multiple levels से use हो सकती है. वो सभी libraries define करने के लिए generally हम ये conforming code segments का use करते हैं. So only few codes which this particular code will be shared by multiple functions, multiple code from different level, we will create it as a conforming code segment. Then we have seen the call gate, that if you are currently executing at level 2 and you want to go to the level 0 or level 1 code segment, then how you can go to the level 0 or level 1 code segment, how you can transfer the control. So for that you require a call gate mechanism. So call gate will work as an interface between your current कोड सेगमेंट एंड योर टारगेट कोड सेगमेंट, दोनों के बीच में ये इंटरमीडिएट वर्क करेगा. एंड देन वी हैव सीन दिस फॉर्मेट ऑफ अ कोलगेट. सो that we have already discussed. Format क्या है, कोलगेट का फॉर्मेट क्या है, what should be the system bit. So system bit की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, एंड टाइप फील्ड क्या होगा आपका वहां पे 110. So that indicates the Colgate indicate करेगा. So what you will get it from Colgate में से आपको क्या मिलेगा, what information you will get from the Colgate? The target कोड सेगमेंट, आपका जो टारगेट कोड सेगमेंट है जहां पे आपको जंप करना था, उसका सिलेक्टर मींस उसका जो सिलेक्टर 13 बिट इंडेक्स होगा, डिस्क्रिप्टर का इंडेक्स होगा, वो यहां से मिलेगा. एंड ऑफसेट एड्रेस दैट इज ऑफ 13 बिट 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस आपको यहां से मिलेगा. So that we will get it over here. So that is about the Colgate. So Colgate descriptor. So Colgate descriptor can be put in GDT or LDT, and it contains information about the destination selector as well as destination offset. ये इसमें क्या होगा, destination selector होगा और destination offset होगा. So destination selector is used to identify the index for your target code segment descriptor. target code segment का जो descriptor होगा वो
GDT LDT में जहां पे होगा उसका यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स. So it will use to get the index for your target code segment descriptor. सिलेक्टर जनरली क्या करता है, डिस्क्रिप्टर के इंडेक्स आपको प्रोवाइड करता है. सो डिस्क्रिप्टर की इंडेक्स आपको यहां से मिलेगी. एंड देन फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर वी विल गेट द बेस एड्रेस एंड लिमिट ऑफ अवर टारगेट कोड सेगमेंट. अब वो टारगेट कोड सेगमेंट में जो बेस एड्रेस मिलेगा उसमें कौन सा ऑफसेट एड्रेस ऐड करना है. सो वी विल ऐड दिस ऑफसेट एड्रेस. टारगेट कोड सेगमेंट का जो बेस एड्रेस मिलेगा आपको उसमें ये 32 बिट का ऑफसेट एड्रेस ऐड करेंगे. एंड सो दिस इज लेट्स से दैट माय टारगेट कोड सेगमेंट. सो टारगेट कोड सेगमेंट में बेस एड्रेस के साथ में कुछ ऑफसेट एड्रेस ऐड करूंगा, दैट इज दिस. सो व्हाटएवर इंस्ट्रक्शन इज ओवर हियर वी विल जंप टू ओवर हियर. यहाँ पे हम जंप करेंगे. आपकी जो कॉल इंस्ट्रक्शन है फार कॉल इंस्ट्रक्शन वो कौन से लोकेशन पे जंप करेगी. सो ऑन दिस लोकेशन वी विल जंप. बट यहाँ पे इंटरफेस क्या होगा आपका, इंटरमीडिएटर क्या है. सो यहाँ पे हम intermediate use कर रहे हैं call gate. So that is the up to this point we have discussed in our previous lecture. Now we are going to discuss what is a word count. यहाँ पे ये word count क्या है and what is the use of this word count. So till first of all till the point everything is clear. यहाँ तक सब कुछ clear है. Why we are using this and what how many ways are there and what is the mechanism. Any doubt till this point? Yes or no? Okay. Okay, so now what is a word count? So word count will be used when word count indicates that how many number of double words we will copy from old stack to the new stack. अब ऐसा क्यों चाहिए? First of all, why we require this? So first of all, let me explain that why we require this, and then we will come back to again this word count, word point. So ये जो पूरा डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया वही डायग्राम है. आप जो इंस्ट्रक्शन लिखोगे फार इंस्ट्रक्शन उसमें कॉल इंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द सिलेक्टर. सो ये सिलेक्टर में से आपको क्या मिलेगा, 13 बिट का इंडेक्स. सो इफ it is a far call and if your privilege level are not match or your privilege condition is not satisfied, then we need to we have to consider that this segment, this selector is pointing to the index, that is index is of call gate, and from this index you will get the call gate descriptor. यहाँ से आपको call gate descriptor मिलेगा. And what information you will get from this descriptor, यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, destination selector field and destination offset. So यहाँ से आपको destination selector मिलेगा. इसका मीनिंग यहाँ से एक और 13 बिट का इंडेक्स मिलेगा. Out of that selector 16 bit we will use 13 bit index. So वो इंडेक्स अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, आपके कोड सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर को, which should be there in GDT or LDT. And then from this code segment descriptor, you will get the base address. यहाँ से ये डिस्क्रिप्टर में से आपको क्या मिलेगा, टारगेट आपका जो कोड सेगमेंट है, दिस इज माय टारगेट कोड सेगमेंट, उसका बेस एड्रेस एज वेल एज उसकी लिमिट मुझे ये डिस्क्रिप्टर में से मिलेगी. एंड इन दिस टारगेट कोड सेगमेंट at which instruction, this is a highlighted green, that is my current instruction. Suppose यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन पे मुझे जंप करना था ये कॉल की वजह से, तो ये ऑफसेट एड्रेस क्या होगा, ये जो इतना ऑफसेट एड्रेस है वो आपको कहां से मिलेगा. सो दैट अगेन यू विल गेट इट फ्रॉम कोलगेट डिस्क्रिप्टर. सो कोलगेट डिस्क्रिप्टर में से आपको दूसरा क्या मिलेगा, डेस्टिनेशन ऑफसेट एड्रेस, दैट यू हैव टू ऐड. ये आपको ऐड करना होगा किसके साथ, बेस एड्रेस के साथ, बेस एड्रेस ऑफ योर कोड सेगमेंट. एंड देन यू विल गेट द फिजिकल एड्रेस ऑफ योर इंस्ट्रक्शन वेयर वी विल जंप, यहाँ पे जंप करेंगे हम. सो दैट इज हाउ एड्रेस. सो यहाँ पे जो आपने फार में जो ऑफसेट एड्रेस इंडिकेट किया होगा वो यहाँ पे कहीं यूज नहीं होगा. सो दैट इज ऑफसेट एड्रेस प्रोवाइडेड बाय फार कॉल इज इग्नोर, वो इग्नोर होगा. सो दैट इज
So that will be defined whenever you will mention that whenever the program will be loaded. So according to that, it will increment it will load its value. So when your target code segment will be loaded, and if the exception will be generated if this particular condition will be not satisfied, then exception will be generated. In that exception handling, this Colgate will be initialized, Colgate descriptor will be initialized, and that address will be stored over here. So that everything will comes under exception part. Exception handling में ये सब कुछ होता है. So जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी आपकी कौन सी प्रिविलेज वाली, अगर आपका current code segment का privilege and your target code segment privilege both are not same, then exception will be generated. In that exception, this particular code segment, target code segment address will be stored over here in Colgate, and then like that, everything will happen like that. So अभी के लिए आप उतना डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है. Now, just right now, you have to understand it like that in Colgate we will have such address. Colgate में हमारे पास ऐसा एड्रेस होगा. In that address we will jump like this. Okay. So that is about this Colgate. So as I already explained, what is the correct mechanism to execute the Colgate with a higher privilege level? So if you are executing a code, if you want to call a code segment which is having the higher privilege level, so यहाँ पे आपने कॉल इंस्ट्रक्शन लिखी, उसमें आप सेगमेंट एंड ऑफसेट मेंशन करते हो, तो क्या ऐसे डायरेक्टली यहाँ से आपको कोड का डिस्क्रिप्टर एंड उसका ऑफसेट एड्रेस मिल जाएगा? नहीं. दिस इज इनकरेक्ट वे इफ यू आर डूइंग फॉर हायर प्रिविलेज लेवल कोड. अगर सेम लेवल पे होगा तो ये करेक्ट मेथड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. If your current code segment and target code segment, if both are at same level, privilege level, then this is the correct, then there will be no problem. But if you want to call a higher privilege code, then what you have to consider, so what is the correct method? So that I have already explained. यहाँ से आपको सिलेक्टर मिलेगा, दैट सिलेक्टर इज पॉइंटिंग टू द गेट, कॉल गेट, और वो गेट में से आपको एक और सिलेक्टर मिलेगा विच इज पॉइंटिंग टू योर segment descriptor, code segment descriptor. And in this code segment descriptor, in this code segment, your offset address, you will get it from here. So this value will be added over here with this base address. So this is a correct mechanism for higher privilege code if you want to access it. So that is all about the accessing the code which is having a higher privilege level. So when a Colgate is used, जब हम Colgate mechanism use करते हैं, so transfer a control with a higher privilege level involve a CPL and current code segment and DPL. So यहाँ पे condition क्या कैसे check करेंगे आप? So अब यहाँ पे कौन सी condition check होगी? So now there are 3 points. One is your current code segment. Your current code segment and uska privilege level. So that is indicated by CPL, or you can say that is RPL. Second point is your target code segment DPL. आपका जो target code segment है उसका descriptor privilege level क्या है? And the third point is what? The third point is that what is the DPL descriptor privilege level of the gate. जो गेट हम यूज कर रहे हैं उसका प्रिविलेज लेवल क्या होगा? So what should be the condition for it? So condition is like this: target DPL should less than or equal to your current privilege level. So that is our desired thing. Colgate तभी हम यूज करते हैं. ये क्या बता रहा है कि आपका जो टारगेट कोड सेगमेंट है, सपोज इट इज एट लेवल 0 and your current code segment which is at level 2. So लेवल 2 पे से आपको लेवल 0 पे जाना है, तभी हम कोलगेट यूज करते हैं. So at that time only we require this Colgate. So level 2 पे से level पे 0 पे जाना है, इसका मीनिंग ये कंडीशन आपकी पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. Your target DPL should less than or equal to, numerically less than or equal to this CPL or RPL. And आपका जो Colgate आप यूज करोगे उसका प्रिविलेज लेवल क्या होना चाहिए?
what should be the privilege level of your Colgate? So Colgate का privilege level होना चाहिए 2 से greater वाला. So 2 से greater वाला means your Colgate privilege should be 2 or 3. If your current privilege level is 2, then you can use the Colgate of DPL2 or DPL3. आप ये DPL2 या DPL3 पे से Colgate यूज कर सकते हो, जिसमें जो डिस्क्रिप्टर आप मेंशन करोगे, कोलगेट का डिस्क्रिप्टर जो आप मेंशन करोगे, तो यहाँ पे भी DPL है, तो यहाँ पे ये DPL क्या होना चाहिए? So it should be 2 or it should be 3. If your example, मैंने जो example दिया उसके लिए, so that is your deep condition, that condition should be satisfy, ये condition आपकी satisfy होनी चाहिए. So that is about over here. So let's say another example. यहाँ पे एक दूसरा example है. So let me give you another example. So if your current privilege level of your code segment is 1, so ये 1 है, and what can be your target DPL? आपका target DPL क्या हो सकता है? If you want to use a Colgate, तो आपका टारगेट DPL क्या हो सकता है? 0 और 1. अभी हम यहाँ पे 1 भी कंसीडर करेंगे जस्ट फॉर कंसिडरेशन, अदरवाइज वो क्या होना चाहिए? 0. ओके, सो आपका टारगेट DPL क्या होना चाहिए? 0. तो अब आप कोलगेट कौन से लेवल पे से कोलगेट यूज कर सकते हो? आपका कोलगेट जो आप डिफाइन करोगे, वो कोलगेट में DPL क्या होना चाहिए? सो इट कैन बी 1, इट कैन बी 2 और इट कैन बी 3. सो दैट इज योर कोलगेट डिस्क्रिप्टर लेवल कैन बी, आपका जो प्रिविलेज लेवल है कोलगेट का, वो क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या 3 भी हो सकता है. सो यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर सपोज यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, so no need to use this Colgate, you can directly transfer. So if a calling code segment and the target code segment are the same privilege level, then no need to use a Colgate. But यहाँ पे condition indicate की हुई है, so वो condition सिर्फ explain करने के लिए मैं यहाँ पे less than or equal to sign use कर रहा हूँ. Otherwise अगर level same होगा तो Colgate mechanism use ही नहीं होगी. So Colgate mechanism is not used. So it is like that. So now, previously, suppose you were at level 1 and now you have jumped to level 0. आपका जो previous code था, ये code segment था, वो level 0 पे था. This is at level 0. And the new code in which we have jumped, that is at level 1. Sorry, करंट कोड है वो लेवल 1 पे है, एंड प्रीवियस करंट जो कोड है वो आपका लेवल 1 पे है, टारगेट कोड है वो आपका लेवल 0 पे है. सॉरी, सो हायर प्रिविलेज लेवल पे आपने अगर अब जंप कर दिया है, लेवल 0 पे आपने जंप कर दिया है, 1 से 0 पे आपने जंप कर दिया है, तो ये जो आपका कोड सेगमेंट जो स्टैक को यूज कर रहा था, द स्टैक सेगमेंट व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय योर कोड 1, code at level 1 now cannot be used by your code at level 0. आप सेम स्टेक को यूज नहीं कर सकते हो. जो स्टेक आप लेवल 1 पे यूज कर रहे थे, वही स्टेक आप लेवल 0 पे यूज नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज कंडीशन क्या है? स्टेक को एक्सेस करने के लिए कंडीशन क्या है? लेवल 1 पे हो तो आप लेवल 1 का ही स्टेक एक्सेस कर सकते हो. लेवल 0 पे जाओगे तो आपको लेवल 0 का स्टेक एक्सेस करना होगा. So when we use a Colgate, the control is transferred to the higher privilege level. So now we cannot use the old stake because stake can be used only from the same privilege level. स्टेक कहां से आप यूज कर सकते हो? सेम प्रिविलेज लेवल पे से ही यूज कर सकते हो. सो लेवल 1 का स्टेक सेगमेंट आप अब यूज नहीं कर पाओगे. सो सच इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होगी? लेवल 1 पे स्टेक है, लेवल 2 पे स्टेक है, लेवल 0 पे जो स्टेक है. सो each such information is stored in one of the segment. That segment name is TSS. जो भी कोड आप करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो, जो भी टास्क आप करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हो,
उसकी इंफॉर्मेशन एक TSS, आप उसको भी एक डेटा स्ट्रक्चर कंसीडर करो या अभी एक टेबल कंसीडर करो कि एक टेबल है, उसमें ये सब इंफॉर्मेशन होगी. सो दैट इज द टेबल नेम इज टास्क स्टेट सेगमेंट. के लेवल 0 पे अभी आपका स्टेक जो यूज हो रहा होगा, लेवल 1 पे जो स्टेक यूज हो रहा होगा. सो एवरी सच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस TSS. सो अ प्रोसेसर, अब आपको क्या करना होगा, ओल्ड स्टेक में से न्यू स्टेक में जंप करना होगा. ओल्ड स्टेक कौन सा होगा, लेवल 1 वाला, एंड न्यू स्टेक कौन सा होगा, लेवल 0 वाला. So now you have to move from level 1 stake to the level 0 stake. So this is level 1 stake is your old stake and level 0 stake is your new stake. So we have to go, we have to jump. So यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी हमको ट्रांसफर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोग्राम का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया. सपोज एडिशन मेथड है ये, सपोज दिस इज योर एडिशन मेथड, सपोज दिस इज योर मेन प्रोग्राम एट लेवल 1 एंड दिस इज योर एडिशन मेथड एट लेवल 0. सो आपने एडिशन मेथड को कॉल तो कर दिया, अब उसमें पैरामीटर पासिंग के लिए आपने सपोज स्टेक यूज किया है, बट स्टेक तो आप यहाँ पे जो स्टेक यूज कर रहे थे वो अब यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे. तो आपको क्या करना होगा, ओल्ड स्टेक में से न्यू स्टेक में कुछ डेटा कॉपी करने होंगे. सो क्या क्या कॉपी होगा, विच bytes will be copied, or what are the bytes that will be copied from level 1 to level 2. So processor push old stack segment information, SS stack segment register, uska ESP means stack pointer, extended stack pointer. Then the number of डबल वर्ड पैरामीटर, जो पैरामीटर यहां से मेन प्रोग्राम में से मुझे मेरी मेथड में पास करना है, तो नंबर ऑफ डबल वर्ड पैरामीटर इक्वल टू WC fill. सो ये WC fill का यूज यहाँ पे आएगा. सो वी आर यूजिंग वर्ड काउंट fill over here. सो वर्ड काउंट fill क्या इंडिकेट करेगा, दैट मेनी नंबर ऑफ डबल वर्ड पैरामीटर्स. डबल वर्ड का मीनिंग क्या है, 32 बिट पैरामीटर्स. One word means 16 bit, so double word means 32 bit. So that many number of 32 bit data we have to transfer. So suppose यहाँ पे 5 है, तो हमको क्या करना होगा, 5 32 bit data we have to transfer from old stake to the new stake. New stake में transfer करना होगा. As well as what is the CS and IP of your old stake, वो भी पुश होगा. जैसे हम नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल कॉल ऑपरेशन में क्या करते थे, सो आपका रिटर्न एड्रेस स्टोर होता था. सो सेम थिंग इज ओवर हियर, आपका रिटर्न एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, CS एंड IP विल बी स्टोर ओवर हियर एंड दैट विल बी यूज इन रिटर्न. जब आप रिटर्न करोगे तब सब कुछ यहाँ से हम वापस रिट्राइव करेंगे. CS एंड IP कहाँ से रिट्राइव होगा, सो एवरीथिंग विल बी रिट्राइव फ्रॉम योर न्यू स्टेक. न्यू स्टेक मीन्स व्हाट, the stake at level 0 and old stake means what, the stake at level 1. So ऐसे हम WC fill का use करते हैं. So this is how we are using the call gate. So now everything is clear. I think everything is clear this about the call gate. Call gate mechanism के बारे में सब कुछ clear हो गया. Any doubt in this call gate? You can access it, everything will be done using operating system. ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है. अभी मैं आपको ये अलग अलग पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. जब इसको आप पूरा कंबाइन करोगे तो तब आपको ये पता चलेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे है. जब हम ऐसे प्रिविलेज लेवल चेंज करना होता है हमको, तो हम डायरेक्टली यूजर लेवल पे नहीं कर सकते हैं. दैट हैज बीन डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ रूटीन्स परफॉर्म करने होते हैं. सो दैट इज वी आर लर्निंग राइट नाउ. ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, कॉल गेट मैकेनिज्म. ये जो हमने स्टडी किया वो कौन कॉल करेगा, ये कॉल गेट मैकेनिज्म कौन यूज करेगा. सो आवर ऑपरेटिंग सिस्टम विल यूज दिस कॉल गेट मैकेनिज्म. वो हम डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ क्या लिखेंगे, हमारा प्रोग्राम जो लिखेंगे उसमें हमने यूज किया होगा, लेट्स से दैट call addition method.
सो उतना आपने लिख दिया, बट आपको पता नहीं है कि अब एडिशन मेथड कहाँ पे है. सपोज एडिशन मेथड आपने सपोज ऐसी एडिशन मेथड डिफाइन की हुई है, एडिशन मेथड इज डिफाइन एट लेवल 1, ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मेथड है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे. इंटरनली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो आपने जो कोड एड लिखा है वो रिप्लेस होगा. किससे रिप्लेस होगा? आपके गेट एड्रेस से. कोलगेट का एड्रेस वहां पे रिप्लेस होगा. फिर कोलगेट के एड्रेस में आपको ऑफसेट एड्रेस मिलेगा. वो ऑफसेट एड्रेस किसका मिलेगा? एडिशन मेथड का. सो एडिशन मेथड का ऑफसेट एड्रेस एज वेल एज सेगमेंट एड्रेस, डिस्क्रिप्टर एड्रेस आपको मिलेगा. सो एवरीथिंग विल बी डन लाइक दिस. डायरेक्टली सब कुछ नहीं होता है. सो दैट इज we are learning it right now because each and every privilege level only we are working at only privilege level 3. हम कौन से लेवल पे एक्सेस कर सकते हैं सब कुछ? लेवल 3 पे. सो जितने भी प्रोग्राम्स, असेंबली प्रोग्राम्स अभी आपने सपोज अभी बनाए हैं, हमने जो प्रोग्राम बनाया था बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन, उसमें हमारा मेन प्रोग्राम था और एक बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्जन की एक प्रोसीजर थी. So that is all both procedure are at level 3, both code are at level 3. So you cannot understand it. But suppose कोई एक प्रोसीजर आपकी लेवल 2 पे या लेवल 1 पे है, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो. आपको क्या करना होगा? ये प्रिविलेज लेवल आएंगे बीच में. So this privilege code should be accessed by your operating system only. So right now, just consider clear, make these concepts clear. You will get more detail about this everything in your operating system subject. ये सब कुछ operating system में भी आएगा. Same thing you will learn in operating system also. But over there you will not learn it at a hardware level. ये जो हम hardware level पे study कर रहे हैं, ये Colgate जो मैंने आपको पूरा structure बताया, operating system में ऐसा कुछ structure आप नहीं सीखोगे आप. Yes, stack does not have its own level. For each privilege level, stakes are defined. Level 0 पे कौन सा stake use करना है, level 1 पे कौन सा stake use करना है, level 2 पे कौन सा stake use करना है, and level 3 पे कौन सा stake use करना है. That is defined in TSS. That is called task state segment. वो हम आगे study करेंगे. So that we will learn, we will discuss it over here. Okay, so now let's move for the next topic, that is a task switching, multitasking. So what is a multitasking and why we require this? So I have already explained the multitasking. मैंने already आपको multitasking explain किया हुआ है. Let's take again one example of multitasking. Let me give one more example. Suppose I have told you that you are having 10 minutes to perform any particular task. You have to switch your task after 10 minutes. Now assume that it is 5 o'clock right now, or assume that it is 2 o'clock right now, and you have started reading a book at 2 o'clock. Then at 2 o'clock and 10 minutes, compulsory you have to stop reading a book and you have to switch to the new task. That is my instruction to you, that you can perform a task only for 10 minutes. So at 2 o'clock, 10 minutes, you have to switch a task. Whatever second task you want to start, you can start it. Suppose at 2 o'clock, 10 minutes, you start writing a programming for assembly program. So from 2 o'clock, 10 minutes to 2 o'clock, 20 minutes, you will write the assembly program. Whatever program, 10 or 20 lines code you have written, then at 2 o'clock, 20 minutes, you have to stop, because continuously you can perform a task only for 10 minutes. That is my instruction. Okay, now 2 o'clock, 20 minutes to 2 o'clock, 30 minutes, you have to do another task. So, जब आप बुक रीडिंग स्टॉप करोगे और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे, वो दोनों के बीच में what you have to do, you have to store something. You have to store that at which point you have to stop reading your book, at which line you have stopped. So every such information or whatever you have learned, whatever you have read it right now till this 10 minutes, what is the story in this 10 minutes? So every such information you have to store somewhere.
and that is we are storing in one segment. That segment is known as a task segment. So हर एक टास्क के लिए खुद का टास्क सेगमेंट होगा. So each and every task will have its own segment that is called task state segment, जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि अभी 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए वो टास्क की. So now 10 minutes is completed and we have to switch it. So ये 10 मिनट्स में जो भी हुआ वो सब कुछ इंफॉर्मेशन हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे. So that all information we will store in this task state segment. उसके बाद हम दूसरा टास्क स्टार्ट करेंगे. उसमें सपोज हमने ये कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की. सो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट आपको 10 मिनट्स है आपके पास. सो ये 10 मिनट्स में सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट हुई. सो उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन भी हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, क्योंकि हमको स्विच करना है. वी वांट टू आफ्टर ईच एंड एवरी 10 मिनट आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू दैट यू हैव टू स्विच द टास्क. So now again after 10 minutes you will start a new task. Again वो 10 मिनट्स आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस आपने यहाँ तक एग्जीक्यूट किया. फिर उसका जो भी स्टेट है, अब स्टेट में क्या क्या आएगा, व्हाट इज देयर इन द स्टेट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. कि टास्क के स्टेट में क्या क्या आ सकता है. स्टेट में आपको इतनी इंफॉर्मेशन रखनी होगी कि आप वापस उसको रिज्यूम कर सको. सपोज आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो. सपोज योर टास्क 1 इज रीडिंग अ बुक एंड टास्क 2 इज राइटिंग अ प्रोग्राम. तो आपने सपोज आपके बुक के 5 पेजेस रीड कर लिए, तो वो 5 पेजेस तक क्या आया, वो स्टोरी आपकी क्या थी, वो आपके दिमाग में कहीं पे होना चाहिए. then and then only you can once you will come back you can start it from wherever you have stopped. अगर आप ये 5 पेजेस में आपने क्या रीड किया था वो भूल जाओगे, then there is of no use. आपको वापस पहले से स्टार्ट करना होगा. so that is not the way. so आपने जो 5 पेजेस रीड किए थे उसमें क्या स्टोरी थी, उसमें क्या क्या आया था, रावण ने राम को मारा था या राम ने रावण को मारा था, क्या था वो स्टोरी, क्या थी. सो सब कुछ वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टेक में स्टोर करोगे. स्टेट उसका नॉट स्टेक, इट इज कॉल्ड स्टेट, TSS, टास्क स्टेट सेगमेंट. सो वंस we will have no new task. सपोज यहाँ पे टास्क 4 है, वो आखिरी टास्क है, तो वापस किसका टर्न आएगा. सो वापस अब हम क्या करेंगे, वापस बुक रीडिंग पे आएंगे. सो सपोज आफ्टर 40 मिनट अगेन वी विल कम बैक टू द रीडिंग अ बुक and we will load this. So that is called task switching. So एक टास्क को आप इंटरमीडिएट बीच में ही छोड़ दोगे और नया टास्क स्टार्ट करोगे. So that is called task switching. So जब टास्क को बीच में छोड़ दोगे तो आपको कुछ स्टोर करना होगा. क्या क्या स्टोर करोगे, so that we are going to discuss today. That we are going to discuss that what is a task switching and what is multitasking. So now I hope all of you are clear this about the multitasking. So let me quickly go through the slides. The multitasking system will allow you execution of multiple tasks from one or more users at the same time using a concept of time sharing. जो मैंने time sharing concepts आपको बताया. So the process runs a task for a period of time and then switches to the next task which is waiting for its turn. After execution of the last task, then again processor will come to the first task. This make it mandatory to the save the state of the task when you will switch somehow so that it can be restarted, it can be started next time with the last state. जहां से आपने स्टॉप किया था वहीं से आप स्टार्ट कर सको. So not from beginning. पहले से आपको वापस आपने सपोज 10 पेज की स्टोरी रीड कर लिए तो वापस पहली पेज से आप रीड नहीं करोगे. 10 पेज पे 10th पेज पे से ही रीड करोगे. बट 10 पेज पे से क्या आया, 10 पेज तक आपकी स्टोरी में क्या आया, वो आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए. So that information we will store in terms of state, in terms of TSS. Where we will store it? We will store it every such information in TSS. So जितने भी टास्क होंगे आपके पास उतने आपके पास सेगमेंट्स होंगे. टास्क के स्टेट को स्टोर करने के सेगमेंट्स होंगे. So thus a task move forward to the finishing. अगर आप आपकी बुक रीडिंग कंप्लीट करना चाहते हो तो आप पहले से ही स्टार्ट करोगे और आपको 10 ही मिनट में आपको हर एक बार दूंगा तो आपकी बुक कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी. क्योंकि हर एक बार आप पहले से स्टार्ट करोगे
10 पेज रीड करोगे, वापस टास्क स्विच हो जाएगा, वापस पहले से स्टार्ट करोगे. So 1 to 10 page you will read multiple time, but that is not the scenario. That should not happen. पहले 10 मिनट्स आपको मिले तो आपने 10 पेजेस रीड कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो 10 to 20 पेज आप रीड करोगे, फिर 20 to 30 पेज रीड करोगे. So after some amount of time it might be possible your book will be completed. So that is our desire. So you will move towards the finishing of your task. So 80386 multitasking environments provide support for this kind of execution without any problem. Abhi, so concepts of multitasking looks very simple, but it raises many issues solving which we will make simple complex. So how this system will make complex? Let's see that complex system. तो एक टास्क में से दूसरे टास्क में जब हम स्विच करते हैं और जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट. So processor needs to remember the correct point to resume. Not only the correct point, but also remember the last date, including the registers, flags, other informations. So every such information, it needs to be remember. It needs to be stored when your particular task is suspended. जब आपका task suspend हो रहा होगा, तो ये सब कुछ आपको याद रखना होगा. याद रखना होगा means you have to store it somewhere. So, एक टास्क की ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर करना और नए टास्क की सभी इंफॉर्मेशन को वापस लोड करना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. द प्रोसेस ऑफ सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आउटगोइंग टास्क एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकमिंग टास्क इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. सो 10 मिनट जब कंप्लीट हो जाएगी तो 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मीनिंग क्या है कि ये जो मैंने स्टोरी बुक अभी रीड कर ली है, तो यहां तक मैंने जो भी रीड किया वो पहले मैं एक बार मेरे दिमाग में स्टोर कर दूंगा कि मैंने यहाँ तक रीड किया था, तो यहाँ तक की स्टोरी क्या थी. दैट देयर आर 4 ब्रदर्स, राम रावण, राम भरत शत्रुघ्न, लाइक दैट स्टोरी, व्हाटएवर स्टोरी इज देयर, दैट यू विल स्टोर इन योर माइंड and then you will stop that particular task. Now you will switch to the next task. तो next task आपने कहां तक किया था? Whether the next task is a new task that you have to start from beginning, or that is again some at some middle level. कोई बीच में से आपने वो ऑलरेडी टास्क छोड़ दिया था, वापस वो टास्क आप रीड कर रहे हो. So every such information, so that is वो पूरी information उसकी आप वापस लोड करोगे. So that is known as context switching. So that is also known as task switching. So that context, अब यहाँ पे क्या होगा? So pointers, registers, and every such information is known as the context. So whenever a time slice is completed, the current task is over, then we need to perform this context switching. We need to save the old task and we have to load the new task. So that is known as the context switching. So ये जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि context switching जो आपके पास 4 टास्क है तो उसमें क्या होगा. So normally a task switch happens when there will be the far call or far jump. तो अभी तो आप बोलोगे कि सर अभी तो पहले ही अभी हमने 2-3 स्लाइड्स पहले ही ये सब कुछ किया कि फार कॉल या फार जंप में क्या होता है. बट व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? दैट यहाँ पे ये जो फार कॉल या फार जंप होता है, दैट हैज बीन डन बिटवीन इंडिपेंडेंट टास्क. ये टास्क आपका 1 है, ये टास्क 2 है, दोनों इंडिपेंडेंट है. सपोज ये आपकी स्टोरी बुक रीडिंग है एंड ये आपका प्रोग्रामिंग, आप प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहे हो, ये आप कोई पजल सोल्व कर रहे हो, तो ये दोनों टास्क में कुछ रिलेशन नहीं है. टास्क 1 एंड टास्क 2 बोथ आर इररिलेवेंट. और ये फार कॉल एक्चुअली परफॉर्म कौन करेगा? सो दिस फार कॉल एक्चुअली परफॉर्म बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. हम परफॉर्म नहीं करेंगे. सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल परफॉर्म दिस टास्क स्विचिंग. ये टास्क स्विचिंग परफॉर्म कौन करेगा? दैट इज परफॉर्म बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज द डिफरेंस. So that is how I explain over here. The another way, so यहाँ पे फार कॉल की वजह से टास्क स्विचिंग हो सकता है और कोई इंटरप्ट की वजह से भी टास्क स्विचिंग हो सकता है, और ड्यू टू एनी एक्सेप्शन आल्सो दैट कैन बी द टास्क स्विचिंग. टास्क स्विचिंग उसकी वजह से भी हो सकता है. So
The Colgate mechanism which we have learned recently, that is for far call. But what was there? आपका जो कोड था वो मेन लाइन का कोड था, और आपका जो फंक्शन था वो कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन या आपका लाइब्रेरी फंक्शन जो आप यूज करने वाले हो. So this both are relevant. Relevant means this both are not independent. ये इसके साथ रिलेटेड होगा, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. बट यहाँ पे टास्क स्विचिंग में जो हम बात कर रहे हैं टास्क की, टास्क 1, टास्क 2, वो भी फार जंप की वजह से ही आप ये टास्क स्विचिंग होगा. बट दैट हैज बीन डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज दैट बोथ टास्क आर टोटली इंडिपेंडेंट. आपके ये जो दोनों टास्क होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे. देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन दिस बोथ टास्क. So that is over here about the task switching, basic terminology about the task switching. अब task switching में भी जैसे हम जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप टास्क स्विच करोगे तो आपको क्या करना होगा? करंट टास्क की सभी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी होगी एक सेगमेंट में. तो वो सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेगमेंट? दैट सेगमेंट नेम इज टास्क स्टेट सेगमेंट. अब ये सेगमेंट को पॉइंट कौन करेगा? Segment means what? It is somewhere in memory. Somewhere in memory we will store all this information. So all this information we will store somewhere in memory. So जहां पे ये information store करते हैं वो उसको हम बोलते हैं segment. और वो segment कौन सा है? वो segment को बोलते हैं हम task related segment. So that is called task state segment. अब ये टास्क स्टेट सेगमेंट मेमोरी में कहां पे अवेलेबल है? उसका बेस एड्रेस क्या होगा? उसकी लिमिट क्या होगी? ये सेगमेंट कौन से प्रिविलेज लेवल पे है? सो एवरी सच इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम डिस्क्रिप्टर. सो वो डिस्क्रिप्टर का नाम क्या है? TSS. सो दैट डिस्क्रिप्टर इज TSS. सो दैट इज कॉल्ड टास्क स्टेट सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट दिस डिस्क्रिप्टर कैन स्टोर ओनली इन GDT. ये डिस्क्रिप्टर कहां पे स्टोर होगा? सिर्फ GDT में स्टोर होगा. ये GDT में क्यों स्टोर होगा? क्योंकि ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन परफॉर्म दिस टास्क स्विचिंग. एक TSS डिस्क्रिप्टर की वजह से या उसमें से दूसरे TSS डिस्क्रिप्टर को अगर एक्सेस करना है, सो दैट कैन बी डन ओनली बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, not by any task, not by any local your local code, local program. So that's why it should not be present in LDT. So इसलिए ये LDT में present नहीं होगा. ये always कहाँ पे present होगा? It will be always present in GDT. So your TSS descriptor will always present in GDT. And how you will identify that whether the descriptor is GDT or not? So S bit की value क्या होगी? 0. And type field की value क्या होगी? 1 0, either 0 or 1. So 1 0 0 1 or 1 0 1 1. So it indicates that your descriptor is TSS. So ऐसे this is again one of the system descriptor. ये क्या होगा? आपका एक system descriptor होगा which is pointing to segment, and that segment is state segment. आपका state segment, task का state segment होगा. So when a task is represented, it means that when this task is your current task. अभी suppose आप, so let me now explain this. So ये एक memory होगी यहाँ पे मेरे पास. So this is my memory. In memory, my one program is there. Let's say that this is your, ये प्रोग्राम है वो बुक रीडिंग का प्रोग्राम है. अभी मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सपोज दिस इज अ बुक रीडिंग प्रोग्राम. तो ये मेरा एक टास्क हो गया. दिस इज माय वन टास्क. तो इसके लिए मेमोरी में एक स्पेस, एक सेगमेंट असाइन होगा. सो दैट इज TSS फॉर दिस टास्क. उसको बोलते हैं TSS फॉर टास्क 1, टास्क सेगमेंट. अब इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी GDT में से. सो ये डिस्क्रिप्टर, TSS का डिस्क्रिप्टर आपको कहां से मिलेगा? सो उसका डिस्क्रिप्टर आपको मिलेगा GDT में से. सो एवरीथिंग विल बी देयर इन योर मेन मेमोरी. ये सब कुछ आपकी मेन मेमोरी में होगा. सेगमेंट भी मेमोरी में होगा, डिस्क्रिप्टर भी GDT में होगा. तो GDT अल्टीमेटली मेमोरी में होगा. आपका टास्क भी अल्टीमेटली मेमोरी में होगा. बट
अब सपोज आप बुक रीडिंग स्टॉप करना चाहते हो और दूसरा प्रोग्रामिंग का टास्क एक्सेस करना चाहते हो. सपोज नाउ यू वांट टू 1 minute. You want to execute the task for, let's say that now we want to perform the task for book reading. Suppose ये book reading का task, प्रोग्रामिंग का टास्क है. सो अब हम प्रोग्रामिंग का टास्क या कुछ भी दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसका भी एक TSS होगा, टास्क सेगमेंट से होगा, और उसका भी एक डिस्क्रिप्टर होगा. So now we have to switch from this descriptor to this descriptor. ये descriptor अब हमको access करना होगा. So if you will access this descriptor, it will give you the state of the next segment and like this. So ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये state segment, यहाँ पे ये जो blue color का segment है उसमें क्या होगा. But first of all, अगर ये एग्जीक्यूशन में है, अगर आप अभी बुक रीडिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके डिस्क्रिप्टर में बिजी होगा. ये फील्ड जो बिजी फील्ड है वो क्या होगा, 1 होगा. अगर आप बुक रीडिंग का टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ये डिस्क्रिप्टर में ये बिट क्या रहेगा, 0. सो दैट इंडिकेट्स दैट योर पर्टिकुलर टास्क इज बिजी, और इफ योर पर्टिकुलर टास्क सेगमेंट इज अवेलेबल, वो बिजी नहीं है. सो दैट इज इन सस्पेंडेड मोड. वो यस, व्हाई डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? किसने ये माइक ऑन किया? किसी को कोई डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट? ओके, सो दैट इज अबाउट द टास्क सेगमेंट एंड टास्क सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. सो अब ये टास्क सेगमेंट में क्या क्या होगा, व्हाट इज देयर इन योर टास्क सेगमेंट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ये सेगमेंट में क्या है, बट मेक वन थिंग क्लियर. यहाँ पे एक आप क्लियर कर लो आपके माइंड में कि पहले जो हमने स्टडी किया था वो सब कुछ क्या था. ये जो अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया, वी हैव सीन दैट इफ यू वांट टू कॉल फ्रॉम lower code segment privilege level, from the lower code segment to the code segment which is having the higher privilege level, then what we have to do, तो हमको क्या करना होगा, कॉल गेट का यूज करना होगा. एंड दिस इज रिजल्ट ऑफ फार कॉल. फार कॉल की वजह से ये सब कुछ होगा, और फार जंप की वजह से ये सब कुछ होगा. Now we are going to discuss the task segment or task switching. In few of the material you will find that is also happen due to the far call, but दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि टास्क जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड नहीं है. So that particular important point you need to keep in your mind. Task switching will be done between independent task, and that is we will do it using two method. टास्क स्विचिंग 2 मेथड से आप कर सकते हो. दैट इज अ डायरेक्ट मेथड एंड यूजिंग अ टास्क गेट. सो वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो द लेक्चर इज ओवर राइट नाउ. यू कैन लीव दिस मीटिंग एंड गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.